मध्य पे आया ना बेटा, हम स्टैंडर्ड बी रघुनाथ में अच्छा रखेंगे, चिंता मत कर। यस, हैप्पी डे, वेरी गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आई होप थोड़ा बहुत मोटिवेशन सब लोगों को मिला है टू बी वेरी पर्टिकुलर। ऐसे तो पर्टिकुलर है सब लोग, स्टिल लॉट ऑफ मोटिवेशन टू गो अहेड। So in today's discussion we'll be talking about the various instruments of the money market. We have started discussion on money market. What is money market? The market where the funds are raised for a short period of up to 1 year is called as money market. Money market के कल हम participants के बारे में discussion कर रहे थे, जिसमें हमने देखा various participants of the money market are the Reserve Bank of India, central and the state government, public sector undertakings, scheduled commercial banks, insurance companies, mutual funds, NBFC, corporates and primary dealers. Okay. Now, in today's discussion, we will be looking about the various instruments which are traded in the money market. अगर मैं आप वाइवा ले लूं और पूछ लूं भाई what are the different instruments traded in the capital market, आंसर आ जाएंगे, equity shares, preference shares, debentures. और वही अगर बोल दो what are the instruments traded in the money market? Instruments. जैसे what are the sources of working capital? Capital. What are the sources of, what are the instruments traded in the money market? Instruments. So ये जवाब ना हो, बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे एक है, लेकिन बाकी और कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो इस मनी मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं, इसके बारे में हमें आज डिटेल डिस्कस करना है। स्टार्टिंग विद कॉल मनी और नोटिस मनी। we'll have the reading of the text, we'll underline the important points, then I'll try to explain you the entire concept. okay, चलिए पेंसिल और निकालिए। अब इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स में आपको जो पूछा जाएगा, जो आपको ध्यान रखना है, एक तो उसकी वैल्यू और उसके मैच्योरिटी पीरियड। एक तो उसका मैच्योरिटी पीरियड इज लेस देन 1 ईयर ओनली, लेकिन मिनिमम पीरियड, मैक्सिमम पीरियड और एक बिल की या एक इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू, ये सारी चीजें समझनी है और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे इस्तेमाल करता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। कॉल मनी और नोटिस मनी मार्केट इज एन इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द मनी मार्केट इन इंडिया। Under call money, funds are lent or borrowed for a very short period, that is 1 day. Under the notice, funds are lent or borrowed for a period between 2 days to 14 days. 1 day, 2 day or 14 days. Funds have been repaid with a specified time on the receipt of the given by the lender. When one bank faces temporary shortage cash, then the other bank with a surplus lends money to it. Hence, call or notice money market is called as interbank call money market. Now understand this particular example. Call money and notice money. Appa Balwan Chowk Private Limited, ABC Private Limited is a company. Now ABC Private Limited is a company which is the requirement of funds. Let's say उन्हें Appa Dappa Chappa 1 lakh rupees fund requirements for a period of 7 days. 7 दिन के लिए उनको पैसे की जरूरत है। Now their bank is SBI bank, please pay attention, SBI उनकी बैंक है जिनके पास से ये पैसा वो ले सकते हैं। अब 7 दिन के लिए पैसे चाहिए, पैसे कितने टाइम के लिए चाहिए भाई? सिर्फ 7 दिन के लिए। Whenever money is wanted for a period of 7 days, do you really think we can go for deposits or some kind? 7 दिन के लिए नहीं, it's not an affordable thing. So there is an option for borrowing the money for such a short period of 2 to 14 days, which is called as the call or notice money. कॉल और नोटिस मनी के बारे में समझने की कोशिश करो, दोनों में फर्क क्या है। सबसे पहले कॉल मनी क्या है या कॉल लोन क्या होता है समझने की कोशिश करिए। एसबीआई ने कस्टमर का रिकॉर्ड देखते हुए प्रॉमिस किया कि हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। दिस इज गिवन फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days ऑफ कॉल लोन। कितने दिन के लिए दिया है? 7 दिन के लिए। Now the call money is given for a period of 7 days. Let's say the loan is given on 1st of January 2021. 7 दिन कितना होता है बेटा यहाँ से? 8 January 2021. So Appa Balwan Chowk Private Limited has borrowed rupees 1 lakh for a period of 7 days till 8th of January 2021. 8th of January 2021 7 दिन के लिए कॉल मनी जो है, पैसा जो है बोरो एसबीआई से किया गया। Now how is call money different in case of call money with a notice and without notice? Whenever call money is borrowed for a very short period without a notice, that call money can be called back by the bank any time within the tenure. That can be called back any time within the tenure. पैसा कब दिया है? 1 जनवरी को।
वापस कब लेने का वादा किया था? 8 जनवरी को, लेकिन सिर्फ वो कॉल मनी विदाउट नोटिस है। तो इस केस में 5 तारीख को बैंक को पैसे की अड़चन आ रही, तो उन्होंने अपने कस्टमर को कॉल किया, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, हमें हमारा पैसा लौटा दो, हमें हमारा पैसा लौटा दो। नाउ दिस इज कॉल मनी विदाउट अ नोटिस पीरियड। नाउ दिस इज कॉल मनी विदाउट अ नोटिस पीरियड। यहाँ नोटिस विटिस कुछ नहीं है, सिर्फ आपसे सहमति से 7 दिन के लिए पैसे दिए गए, लेकिन बीच में 5 दिन के बाद बैंक को थोड़ी दिक्कत आ गई, फाइनेंशियल शॉर्टेज आ गया, तो बैंक ने क्या किया, वापस कॉल किया और कहा कि भाई हमारे पैसे हमें लौटा दो। तो उसी दिन 5 दिन के बाद इमीडिएटली एबीसी को भेज देना। वो नहीं बोल सकते कि हमने 7 दिन के लिए पैसे लिए थे, अब हम 2 दिन के बाद पैसे देंगे। दे हैव टू पे इट ऑन 5th of January 2021। कब पे करना पड़ेगा उन्हें? 5th of January 2021। Now if there is a call money with a notice period, if there is a call money with a notice period, then the repayment has to be done only on 8th of January 2021। डिफरेंस समझ में आ रहा है? कॉल लोन और कॉल लोन विद अ नोटिस पीरियड। कॉल लोन विद अ नोटिस पीरियड है तो जितना नोटिस पीरियड है उतने नोटिस पीरियड के समाप्ति के बाद ही पैसा देना पड़ेगा। कॉल मनी विदाउट नोटिस पीरियड है तो जब भी पैसा लिया गया है, जितने भी दिन के लिए लिया गया, नॉर्मली उतने दिन के लिए वो पैसा जो है वो रह जाता है, लेकिन कभी कभार अगर शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो तो बैंक बिफोर वो नोटिस पीरियड के जो है पैसा वापस मंगवा सकता है। दोनों के बीच का फर्क समझ में आ रहा है? फर्क समझ में आ रहा है? कॉल मनी विदाउट अ नोटिस पीरियड, कॉल मनी विद अ नोटिस पीरियड। कॉल मनी विद अ नोटिस पीरियड में जितना टाइम पीरियड है नोटिस पीरियड के लिए पैसा दिया गया है, जितना टाइम पीरियड के लिए नोटिस पीरियड के लिए पैसा दिया गया है, उतने टाइम पीरियड के लिए आप जो है पैसा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर बगैर नोटिस पीरियड का कॉल मनी दिया गया है तो ऐसे केस पे अगर बैंक को फंड रिक्वायरमेंट है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, तो ऐसे केस में बैंक जब चाहे तब पैसा वापस मंगवा सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर कॉल मनी? इट इज फ्रॉम 1 day to 14 days, यानी मैक्सिमम कितने हफ्ते के लिए? 2 हफ्ते के लिए। तो बट ऑब्वियस कॉल मनी या कॉल लोन कहां पर आएंगे? शॉर्ट टर्म मार्केट या मनी मार्केट में आएंगे। नॉर्मली कॉल मनी या कॉल लोन बिजनेस हाउस के लिए भी अवेलेबल होता है, लेकिन आजकल जो है बिजनेस वालों को इतने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कॉल मनी लोन देना बैंकों ने बंद कर दिया। नॉर्मली ये जो कॉल मनी और नोटिस मनी का जो फंडा है, कॉल मनी और नोटिस मनी, कॉल मनी और नोटिस मनी में फर्क क्या है? कॉल मनी के अंदर पैसा शॉर्ट पीरियड के लिए दिया जाता है, लेकिन वो पीरियड खत्म होने के पहले बैंक जब चाहे तब, जो लेंड कर रहा है, जो पैसे दे रहा है, वो जब चाहे तब वो पैसा वापस मंगवा सकता है, और वो जब वापस पैसे मंगवाए जाएंगे तभी उस दिन आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा। और उसके अगेंस्ट है नोटिस मनी। नोटिस मनी में क्या है? 2 दिन से लेकर 14 दिन तक पैसा तो दिया जा रहा है, लेकिन पैसा वापस रिपे उस नोटिस पीरियड के खत्म होने के बाद ही रिपे करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब पहले जो ये कॉल मनी और नोटिस मनी का फंडा था, दैट वाज अप्लाइड टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बट रिसेंटली ये कॉल मनी और नोटिस मनी का फंडा सिर्फ कमर्शियल बैंक आपस में अपने कैश या मनी शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट है, इट इज यूज्ड जस्ट बाय द कमर्शियल बैंक्स। कौन इस्तेमाल कर रहे हैं इन्हें? सिर्फ कमर्शियल बैंक। लेट्स से एसबीआई के पास एक्सेस कैश है, एचडीएफसी के पास कैश का शॉर्टेज है, तो एक साथ 6-7 दिन के लिए उनको टेम्पररी पैसे चाहिए, तो एचडीएफसी बैंक क्या करेगी? एसबीआई बैंक से कॉल मनी लेगी फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days या नोटिस मनी लेगी फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days। सो इज एचडीएफसी बोरिंग फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 year? यस, 7 days इज बट इज लेस देन 1 year। अभी ओके एंड क्लियर? कॉल मनी नोटिस मनी क्लियर है क्या? चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं, ट्रेजरी बिल्स। कल हमने देखा था ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्रेजरी बिल्स की मैच्योरिटी पीरियड 3 तरह से होती है, आइदर इट इज 91 days, 182 days और 364 days। ट्रेजरी बिल्स का मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है? 91 days। ट्रेजरी बिल्स ऑफ 91 days, ट्रेजरी बिल्स ऑफ 182 days एंड ट्रेजरी बिल्स ऑफ 364 days। 91, 182 and 364। Now is the time period less than 1 year? Is the time period less than 1 year? Yes or no? हाँ या ना? And treasury bills are always issued in multiples of 25,000। देखो नीचे दिया हुआ है, in multiples of 25,000। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट अंडरलाइन करें, issued at discount and repaid at par, hence they are also called as zero coupon bonds। ट्रेजरी बिल्स को हम जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहते हैं। क्यों जीरो कूपन बॉन्ड्स कहते हैं? कूपन वाले बॉन्ड, जो बॉन्ड्स जो रेगुलर होते हैं, रेगुलर बॉन्ड जो होते हैं, रेगुलर बॉन्ड पे क्या पे किया जाता है? इंटरेस्ट पे किया जाता है, राइट? सो दोस बॉन्ड्स कैरी कूपन्स ऑफ इंटरेस्ट।
प्लीज पे अटेंशन, व्हाई डू वी कॉल देम एज जीरो कूपन बॉन्ड्स? रेगुलर बॉन्ड जो होते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है, सो रेगुलर बॉन्ड जिनके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है दे कैरी कूपन्स ऑफ इंटरेस्ट, बट in case of treasury bills which are also a bond, a type of bond, these are issued for a period of 91 days, 182 days or 364 days, for a period of less than 1 year. They are issued in multiples of 25,000. मतलब either treasury bill की वैल्यू होगी 25,000, 50,000, 75,000, 1 lakh, 1,25,000, 1,50,000, 1,75,000, 2 lakh. In multiples of 25,000 इसका वैल्यू होगा, प्लस इन्हें क्या कहा जाता है? जीरो कूपन बॉन्ड. क्या कहा जाता है? जीरो कूपन बॉन्ड. जीरो कूपन बॉन्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके साथ कोई भी इंटरेस्ट का कूपन अटैच नहीं किया जाता. सो भाई कोई ये व्यक्ति इस पर्टिकुलर ट्रेजरी बिल को लेगा क्यों? दे आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार. दे आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार. लेट फॉर एग्जांपल से कांशुक्ले जो हमारे हैं, सब सेफ चाहिए, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल है तो उन्हें पता है सरकारी है तो पैसा सेफ है. सो दे हैव बॉट अ ट्रेजरी बिल ऑफ 364 डेज ऑफ वर्थ ₹25,000. अब इट्स अ जीरो कूपन बॉन्ड, इसके ऊपर कुछ कूपन आना है क्या? नहीं. दे आर इश्यूड एट डिस्काउंट. डिस्काउंट वैल्यू कब होती है? जो गिवन वैल्यू उससे ज्यादा है, गिवन वैल्यू से कम. गिवन वैल्यू से कम. लेट्स फॉर एग्जांपल से these are issued at 23,000. So this is discounted value, or you can say call it as issue value. What is issue value of the treasury bills? 23,000. And this is for a period of 364 days. After 364 days, it has to be repaid to Kanshukle. And it is to be redeemed at par. That means it is to be redeemed at face value, which is nothing but 25,000. So what is that 2,000? 2,000 is nothing but the return which it gets on investment in the treasury bills. Are you getting my point? इसीलिए इसे क्या कहा जाता है भाई? जीरो कूपन बॉन्ड्स. क्या कहा जाता है? जीरो कूपन बॉन्ड्स. क्या हो गया भाई तुम्हें? टेक्स्ट बुक दे. यस प्लीज पे अटेंशन. Treasury bills are short-term securities issued by the Reserve Bank of India on behalf of the central government to meet government short-term fund requirements. अभी exactly ये जो ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म के लिए इशू किए जाते हैं किसके फंड रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के कैश रिक्वायरमेंट्स या शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ये जो ट्रेजरी बिल्स है ये इशू किए जाते हैं. हाँ या ना? राइट. दे आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. लेकिन क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद के लिए इशू कर रहा है क्या? नहीं. ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. क्यों करता है? बिकॉज सेंट्रल बैंक इज अ बैंक ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. To meet the fund requirement or short term fund requirement, treasury bills will have a maturity period of 91 days, 182 days or 364 days. These bills are sold to bank and individual firms and institution etc. These bills are negotiable instruments and freely transferable. The minimum value of treasury bills is 25,000 or in multiples of 25,000. These are issued at discount and repaid at par, hence they are also called as zero coupon bonds. Are we okay and clear? So what is the first instrument which is traded in the short term money market? कॉल मनी और नोटिस मनी. कॉल मनी के अंदर पैसा दिया जाता है शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन जब चाहे तब वापस लिया जा सकता है. नोटिस पीरियड के अंदर पैसा शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है और जितना नोटिस पीरियड है उतने नोटिस पीरियड के अंदर पैसा वापस ले लिया जाता है. टाइम पीरियड क्या है उतना वहां पर 1 day to 14 days. यहाँ पर कितना है टाइम पीरियड? 91 days, 182 days, 364 days. यहाँ पर ट्रेजरी बिल्स की वैल्यू कितने में होती है? मल्टीपल्स ऑफ 25,000. नेक्स्ट, trade bills or commercial bills. Now trade bills or commercial bills refer to your bill of exchange. Have I explained bill of exchange? सबको पता है bill of exchange क्या होता है? See, when there is a buyer, there is a seller. There is a buyer and there is a seller. Let's say the seller has sold goods worth rupees 10,000. Goods worth rupees 10,000 to the buyer, and the buyer has not paid any money on same. In return, the buyer has promised to pay the money after 30 days. The buyer has promised to repay the money of 10,000 after 30 days. Now in this case, the goods are sold on credit for worth rupees 10,000 to the buyer, and the buyer has promised to repay that money in 30 days. Now in this case,
we need certain medium of exchange which will act as a promissory or obligation on the buyer to repay. Now what we use is bill of exchange. Bill of exchange is an instrument of transfer or medium of exchange which is used in case of credit sale, which is used in case of credit sale. बिजनेस में सेल दो तरह से होते हैं, एक होता है कैश सेल, दूसरा होता है क्रेडिट सेल. कैश सेल के अंदर कस्टमर पैसा दे रहा है, उसको चीजें दे रहे, वही चीजें खत्म हो जाती है. लेकिन क्रेडिट सेल में लेट्स से बायर ए है और सेलर बी है, बी ने उधार चीजें जो है वो ए को बेची है, लेकिन कल को 30 दिन के बाद अगर ए ने पैसे नहीं दिए, हाउ विल बी प्रूव कि ये पैसे उससे आने हैं? सो उसके लिए कोई आपको एक डॉक्यूमेंटल प्रूफ लगेगा, क्योंकि कोर्ट जो है वो सबूत मांगती. कोर्ट क्या है? सबूत मांगती. इसलिए वो जो सबूत बनता है वो इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है ऋतुजा बिल ऑफ एक्सचेंज. क्या कहा जाता है उसे? बिल ऑफ एक्सचेंज. इथं पुढे ये तू मागं बसून झोपू नको, तुझ्या जागेवर येऊन बस, ये लवकर. बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कहा जाता है उसे? बिल ऑफ एक्सचेंज. नाउ बिल ऑफ एक्सचेंज इज क्रिएटेड बाय सेलर. हु क्रिएट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज? सेलर. अभी 10,000 के जो आउटस्टैंडिंग आने हैं, इसका जो बिल है वो क्रिएट कौन करेगा? सेलर. इट इज एक्सेप्टेड बाय द बायर. बिल ऑफ एक्सचेंज आर क्रिएटेड बाय द सेलर एंड इज एक्सेप्टेड बाय द बायर. वंस द बिल ऑफ एक्सचेंज इज एक्सेप्टेड बाय द बायर, इट बिकम्स अ promissory note, or it can say it is called as a trade bill or a commercial bill. And this trade bill or commercial bill can be discounted with any of the commercial banks. अब बिजनेस को पैसे कितने दिन के बाद आने? 30 दिन के बाद आने. लेकिन बिजनेस को अगर अगले 10 दिन में और एक ऑर्डर आता है, तो ऐसे केस में बिजनेस क्या करता है? उस बिल ऑफ एक्सचेंज को ले जाकर बैंक में देता है, उसे डिस्काउंट करवाता है, इमीडिएटली कैश ले लेता है, बैंक को डिस्काउंट का जो है कमीशन मिलता है बतौर प्रॉफिट, और 30 दिन के बाद रकम कौन वसूल करता है? बैंक वसूल करती है उस कस्टमर से. सो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस of raising funds with the help of bill of exchange and discounting of bill of exchange is also one of the instruments which is traded in the money market. और bill of exchange चीजें आप मार्केट में उधार कितने दिन के क्रेडिट पे दोगे? 30 days, 15 days, 30 days, 45 days, 60 days, सिर के ऊपर पानी 90 days, या बहुत ही ज्यादा हो गए तो 180 days. उससे ज्यादा चीजें मार्केट में उधार दोगे क्या? नहीं. अगर एक साल से ज्यादा चीजें उधार दी तो वो भी भूल जाता है कि अपन ने कोई ऐसी चीज भी खरीदी. नहीं, मैंने तो कुछ खरीदा ही नहीं आपकी दुकान से. Bill of exchange are also called as trade bills or negotiable instruments drawn by the seller on the buyer for the value of the goods sold under credit sales. They have short term maturity period general of 90 days. जैसे मैंने बोला 15 days, 30 days, 45 days, 60 days, 90 days तक जो है इसका maturity period होता है and can be easily transferred. If the seller wants immediate cash, he can discount the trade bills with the commercial bank, that is sell it bank for cash. That is called as discounting of bill of exchange. क्या कहते हैं उस concept को? Discounting of bill of exchange. Discounting of bill of exchange में क्या होता है? ये 10,000 का बिल जो अपने को आना है, उसको हम डिस्काउंटिंग बदल बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक में देते हैं. बैंक हमें 9,800 रुपए देगा. बैंक कितने रुपए देगा हमें? 9,800. और बाद में अपने कस्टमर से कितना वसूल करेगा? 9,800 की जगह पे 10,000 वसूल करेगा. और जो 200 रुपए उसे मिलते हैं वो उसका डिस्काउंट, वो जो उसका प्रॉफिट है, विच इज अर्न्ड ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिकॉज बैंक ऑलवेज wins. When the trade bills are accepted by the commercial bank, it is known as commercial bills. जब इस बिल ऑफ एक्सचेंज को कोई बैंक एक्सेप्ट करके उसको डिस्काउंटिंग करती है, तो इस ट्रेड बिल बन जाते हैं कमर्शियल बिल. इस ट्रेड बिल को क्या कहा जाता है? कमर्शियल बिल. सो ट्रेड बिल एंड कमर्शियल बिल इज वन एंड द सेम. Trade bill is nothing but the bill of exchange. When the bill of exchange is accepted by the bank and discounted, that are called as commercial bills. Banks rediscount their bills any number of times till the maturity of the bill. फिर ये कमर्शियल बिल को एक बैंक दूसरे बैंक के साथ जितनी बार चाहे उतनी बार डिस्काउंटिंग करवा सकते हैं till the maturity period of 30 days. So this is all about trade bills or commercial bills. Are we clear? Are we clear? Are we clear? Yes or no? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कमर्शियल पेपर्स. आज के लिए लास्ट पॉइंट, आज साठी शेवटचा पॉइंट. एक लास्ट पॉइंट आज. नको नको क्या? 12 बजे छोड़ दू 12 बजे. हाँ छोड़ दू 12 बजे. नहीं नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई नहीं हुए. चलो कमर्शियल पेपर्स टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई नहीं हुए. कमर्शियल सी प्रिंसिपल्स फॉलो करने, रूल्स फॉलो करने चाहिए ऐसे. प्रिंसिपल्स, कमर्शियल पेपर्स इज एन अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट. प्लीज एक लास्ट पॉइंट, एक ही पॉइंट लेता हूं, इतना ही पॉइंट. फिर बाद में और 4 पॉइंट है जो 4 पॉइंट अपने कल लेने आते हैं.
Please. Commercial paper is an unsecured promissory note issued by highly rated companies at all India financial institutions like SIDBI, Exim Bank and primary dealers with a fixed maturity period of 7 days to 1 year. अब commercial paper का maturity period कितना अंडरलाइन करिए 7 days to 1 year. Minimum value of commercial paper is 5 lakhs or multiple of 5 lakhs. 5 lakhs or multiple of 5 lakhs. Again, these are issued at discount to the face value and are highly liquid. It gives better returns to normal bank deposits. Oh, fixed deposit से अच्छा return है इसके ऊपर. Fixed deposit से अच्छा return दिया जाता है because they are issued at discount, and that discount which you earn on commercial papers is high, gives you high return than the regular deposits you make in bank. दिया हुआ है देखो. Individual banks, so textbook में दिया है तो गलत नहीं होगा. कांशुक्ले डैडी को बोलो commercial paper में invest करें. Individual banks, mutual funds, कंपनीज एक्सेट्रा इन्वेस्ट, और म्यूचुअल फंड भी देखो इन्वेस्ट करता है. तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट कर रहा है, इससे अच्छा आप ही डायरेक्टली कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करो ना, तो म्यूचुअल फंड का कमीशन भी आपको आ जाएगा. सोचो, अंडरस्टैंड, रिटर्न ज्यादा आएंगे, रिटर्न ज्यादा आएंगे हमें. कांशुक्ले लक्ष्य द्या. कमर्शियल पेपर्स आर द पेपर्स विच आर नथिंग बट अनसेक्योर्ड promissory notes. Unsecured promissory notes means these papers which are issued by the high rated companies or high goodwill companies do not have any charge on the assets of the company. They are issued in multiples of 5 lakhs. काय 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 हाँ, तो रिटर्न भी ज्यादा है ना. हाँ, तो रिटर्न भी ज्यादा है ना. रिस्क है तो इश्क है बेटा, तुमसे ना हो पाएगा. कोटेकर, तुम फिक्स डिपॉझिट में पैसा इन्वेस्ट करो, तुम्ही तर मत दिमाग लगाओ प्लीज. तुम्ही एवढं डोकं लावूच नका, अजिबात नाही. सुनलो, खाली पडलो, बस. शेवटी आपल्याला फिक्स डिपॉझिटच करायचे, समजे क्या. सो दे आर इश्यूड एट डिस्काउंट टू द फेस व्हॅल्यू अँड रिपेड ॲट पार, अँड दे आर रिपेड ॲट पार. ओके, राईट. रिस्क हा शब्द ऐकला तरी कसा तरी वाटतो, म्हणजे नकोच प्लीज. सो दे आर इश्यूड इन मल्टिपल्स ऑफ 5 lakh. Commercial paper will be issued in the value of 5 lakhs, 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs, 25 lakhs. So these are the way or the multiple values of the commercial papers. अब commercial paper कौन issue करता है? Reputed company. They are issued for a period of 7 days to 1 year. Issued at discount. Issued at discount. And repaid at par. Thank you so much.